Now, while that suspense, of course, continues, Jairam Ramesh, of course, says that suspense will end tonight. Here's why Congress needs to win back Amethi. If you look at it from the Congress's perspective, then the Congress can repel the image of the Congress's decline in the heartland, the Hindi heartland, where the party has been on the downward slide. Also, it is important for the Congress's revival in saffronized Uttar Pradesh, which has been overwhelmingly voting for the Bharatiya Janata Party in the past general elections as well as the assembly elections. It could also re-energize Congress cadres in the north as well. They would feel enthused. You've heard from several of those cadres just waiting for Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi to be announced as the Congress's candidates from Amethi and Rae Bareli respectively. Also, it would establish Congress writ in Lok Sabha bastion of Amethi, the lost bastion of Amethi. It would again say that the Congress is back in the game. Also, it would show Rahul Gandhi as a true pan-India leader. So if he contests and wins from Wayanad, if he contests and wins from Amethi, it would then send out a very strong message concerning Rahul Gandhi's own image. Samar Srivastava, my colleague, is now joining us live from Rae Bareli. He's been tracking all the developments in the adjoining constituencies of Amethi and Rae Bareli. Samar, if I could come across to you, of course, the suspense will only end by tonight is what Jairam Ramesh claims. But we've heard from a lot of Congress cadres in Amethi. They want to see Rahul Gandhi back in the game as far as Amethi is concerned. What about Rae Bareli? What are you hearing? Well, exactly. We are getting the same sense from the Rae Bareli as well. They want Priyanka Gandhi to fight from Rae Bareli, and as we saw what the leadership in Amethi said, that they want Rahul Gandhi from Amethi, but the suspense is still on, and I am present at the party office of Rae Bareli, where you can witness the Congress workers having the discussion about that particular suspense, because they are also eager to know, like, who is that leader which is going to file the nomination papers tomorrow at the collectorate. See this view from the Congress office of Rae Bareli and just witness the Congress leaders, the Congress workers out here having this discussion about entirely, they are in a way, they want to know who is going to be that person from the Gandhi family. Is it Rahul Gandhi or is it Priyanka Gandhi Vadra? Out of two, who is going to contest the elections this time? And what we are getting, that a person, or senior Congress leader is also coming to the Rae Bareli office to have a discussion with the local leadership. See, I have got many persons out here. आप लोग को क्या लगता है यहाँ से चुनाव कौन लड़ने वाला है? यहाँ से तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रियंका जी लड़ेंगी. अगर प्रियंका जी नहीं लड़ी तो कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट आएगा हम लोग उसके लिए तन मन धन से चुनाव जिताएंगे. ये बार बार चर्चा हो रही है कि इतना देरी क्यों हो रही है नाम आने? हाँ, देरी जरूर हो रही है, परंतु पूरे जनमानस में यह है कि हमको कांग्रेस को ही जिताना है, क्योंकि इस जिले में जितना भी काम कांग्रेस ने किया किसी पार्टी ने और नहीं किया. So you are hearing the Congress workers right here. And I see a lot of people, a lot of workers right here, and a small meeting is also going on inside that particular premises. Some leaders coming out after the conclusion of the meetings. I'll try to take a word from them as well. आप लोग यहाँ पर राय बरेली में हैं. चुनाव बड़ा है राय बरेली का भी अमेठी की तरह ही. कल नामांकन है. कुछ क्लैरिटी दिल्ली से आई है कि कौन? पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है. हाँ, किसको लड़ाने की? कांग्रेस लड़ेगी और कल पर्चा जब दाखिल होगा तब पता चलेगा किस नाम जब भरा. मतलब कल तक सस्पेंस बना के रखेंगे आप? जी, वो है, कांग्रेस लड़ेगी, बस समझ लीजिए आप. और जहां तक इच्छा की बात है, राय बरेली की पूरी जनभावना है कि प्रियंका जी लड़ें, और हमारे देश के लोगों की इच्छा है कि प्रियंका जी एक्टिव राजनीति में आवें और बागडोर संभालें. समझ गए? तो इच्छा होगी तो उन्हीं के नाम आ जाएगा, लेकिन अभी बताया नहीं जा सकता. बैठकों का दौर सुबह से राय बरेली के पार्टी दफ्तर में चल रहा है. आप लोग की चर्चाएं भी हो रही हैं? हाँ हाँ, चर्चा तो एक ही है, सारी तैयारी हो रही. कहाँ से कौन आएगा, कैसे संबंध. बीजेपी बार बार ये कह रही है कि जो कांग्रेस है वो डर गई है, चाहे अमेठी हो चाहे राय बरेली. भाजपा डर गई है, नाम नहीं घोषित कर पा रही है. भाजपा ने किया, कह रहे हमने अमेठी में तो कर दिया. क्या अमेठी में कर दिया? कर नहीं दिया है, वो सिटिंग एमपी था. कर नहीं दिया है, सिटिंग एमपी था. और
अगर यही बात है तो केसरगंज में क्यों नहीं कर दिया? अगर भाजपा डरी ना होती तो ऐसा कैसे होता? भाजपा पूरी तरह से डर गई है और उसकी सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कागज कलम हो तो लिख लीजिए। So you heard the leaders from the Congress party who are having the discussion and holding meetings again and again, having the discussion like who is going to file the nomination papers tomorrow. But what we are getting a sense from this party office that they have made their mind, and what they have got the message from Delhi is that it's more likely that Priyanka Gandhi might file nomination papers tomorrow from Raebareli. Back to you. Right. Samarth, of course, bringing us all of those voices from the ground. In fact, Samarth earlier did speak to the local Congress leadership, which is confident of a landslide Congress victory in Raebareli. They say, be it Rahul or Priyanka, Congress will emerge victorious with lakhs of votes in their favor from Raebareli. Listen in. तो माना जा रहा है शाम से रात होते होते कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली और अमेठी की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आखिर रायबरेली से कौन उतरेगा चुनाव में और क्या सोचती है यहाँ की लोकल कांग्रेस की लीडरशिप, वो जानने हम आए हैं रायबरेली के कांग्रेस दफ्तर, जहां आपको तस्वीरों में कांग्रेस का इतिहास भी दिखेगा, कांग्रेस का वर्तमान भी दिखेगा और कांग्रेस का भविष्य भी दिखेगा। सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा चली जाती हैं। चर्चा उस दिन से कयास लगते हैं कि प्रियंका गांधी ही अब जो है यहाँ की बागडोर संभालेंगी, लेकिन अब कल नॉमिनेशन है, अभी तक नाम साफ नहीं है। हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पहले भी कहा था जब वो राज्यसभा जा रही थी कि रायबरेली से हम अपना नाता खत्म नहीं करेंगे, हमारा परिवार रायबरेली से जुड़ा रहेगा। इसलिए भी हम लोग पूरा आश्वस्त हैं और रायबरेली का आम जन जन ये चाहता है कि गांधी परिवार से ही लोग यहाँ लड़ें, प्रियंका जी लड़ें, अगर कोई बहुत विशेष वो है तो राहुल जी लड़ें। प्रत्याशी के तौर पर आप, क्योंकि आप लोग यहीं के नेता हैं, आप लोगों की पहली पसंद क्या है? मेरी पहली पसंद मैंने बताया ना कि प्रियंका गांधी जी लड़ें, बहुत अच्छा, राहुल जी लड़ें, बहुत अच्छा है। दोनों लोग इसमें पसंद नापसंद कोई बात नहीं है। रायबरेली का रिश्ता गांधी परिवार से पुराना है और गांधी परिवार का रिश्ता रायबरेली से। तो ये स्वर्गीय नेहरू गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय फिरोज गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, अब मैडम सोनिया गांधी जी, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, तो ये गांधी की रायबरेली है, उन्हीं के साथ रही है, उन्हीं के साथ रहेगी। नहीं, अच्छा, अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है पार्टी द्वारा। कहते हैं जब तक आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए। 1% अगर ऐसा होता है कि कोई चेहरा नहीं होता है, आप पुराने नेता यहाँ के, आपको क्या लगता है अगर राहुल या प्रियंका में से कोई नहीं होता है तब फिर आप लोग किस तरह से? ऐसा नहीं है। देखिए, ये गांधी परिवार हमेशा से रायबरेली के बारे में चिंतित रहा है और गांधी परिवार जो है रायबरेली अमेठी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि हमेशा जब इतनी ज्यादा बीजेपी की लहर थी उस समय उत्तर प्रदेश की रायबरेली की एक सीट निकली और भारी मतों से सोनिया गांधी जी जीती। और यहाँ पर इस बार तो जो हाल होगा, चाहे जो प्रत्याशी आए हमारे पार्टी से, कि जनता स्वयं चुनाव लड़ने जा रही है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का। बीजेपी ने भी अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, उसके पीछे ही क्या वजह समझते हैं? देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। क्या विकास किया है 10 सालों में? अगर कोई विकास किया होता तो वो अब तक अपने प्रत्याशी उतार दिए होते। उन्होंने कोई विकास, वो भी आपके प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मेरा प्रत्याशी तो क्लियर है, केवल इसलिए कि उनका घर है रायबरेली, उनका परिवार है रायबरेली और यहाँ सोनिया जी रायबरेली को ससुराल मानती हैं और ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपना घर मानती हैं। कांग्रेस की लीडरशिप, लोकल लीडरशिप जो असल में ग्राउंड पर चुनाव को लेकर तैयारियां करते हैं, उनका ये मानना है प्रियंका गांधी कल नामांकन पत्र भरेंगी, तैयारियां हो चुकी हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि गांधी परिवार से कोई भी आएगा, मतों का अंतर लाखों में होगा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव।